I feel extremely privileged and honored to be given this opportunity to welcome you all to our humble abode, to the School of Jawaharlal Nehru Memorial Senior Secondary School. Today, we all have gathered here to learn and inculcate the values and ingredients that make us a teacher. Actually, what we call in our basic daily job life is actually to become a better form of a teacher. Next, to so be specific, so just like how we train our little tiny dogs and the growing adults of the future, we as teachers also need to flourish and polish our schools. At the same time, we call it through training. Today is the PGT training of commerce. So, here we are. The flags are flying, the balloons are ready to use and release. But before planning, this was what we all have been waiting for. I'm sure you all want today, and this is an agreeable welcome. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all, as your presence makes us very much more heartful. We will soon start our most concentrated competition. At the same time, please wait a little bit so that our trainers are completely ready to participate in. Dear teachers, we heartily our dearest and the chief guest of today's seminar. At the same time, we have Mrs. Principal, Mrs. Ronald Dewey ma'am. Please have a hearty welcome for her. At the same time, our academic coordinator, Mr. Ajay Chavis sir. As we are moving on, let's start with our PGT training on commerce for today. Before doing it, let's welcome our dearest principal up on stage. Please, ma'am, please come forward and please share a few simple words. Good morning, all of you who are present here. A heartiest welcome from the Board of Art of JNMS Senior Secondary School. We are here, we all are leaders, and today we will be the learners because we have to enhance the skills of students. So all the best to all the resource persons as well as the learned people, the learned facilitators who are here. Thank you. Thank you so much, ma'am. I would like to call Mr. Ajay Chavis sir to please come up and facilitate our dearest principal with the bouquet. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. As we all have come to the most focused part, the most important ceremony doesn't start even if we don't do it. The lighting of the lamp. I again welcome and call upon our dearest principal and Mr. Ajay Chavis sir, at the same time our master trainers, to please come up on the stage and enlighten us with the light of the day. First of all, very good morning to all the teachers, facilitators, mentors, our mentors in this arena. I would like to call upon all the facilitators onto the dais for lamp lighting ceremony. Please, sir, you all please come on the stage. It's our day, it's our get together, the commerce department get together. So please go on and invited on the stage for lamp lighting ceremony.
I request Sri Mohan Hassan to please light the lamp. Please. For being here and uniting the mass of education and knowledge on this special day. Not waste more ado time, and we will begin with the coordinator of our entire school. At the same time, he is a resource person in various Sahodia training Dhanbad chapter. Please have a huge welcome round of applause for his delight sir. A very good morning to all the facilitators over here. As today's special guest master trainer, Mr. Mohan Chatterjee sir, will be here by 10 a.m. But as per the schedule of Sahodia, we have to start the training right from 8 a.m. So we will start the session, and the first lesson will be conducted by myself. Before starting the session, I would like to quote some lines for you all intellect persons. नमन है तुमको, वंदन है कॉमर्स के दिग्गजों, तुझे अभिनंदन है। सीता है अटल हिमालय सी, महमह महके वो चंदन है सुखदा सुखद लगे मुझको, सुखना ऋतु का परिवर्तन है कॉमर्स के अतिथियों तुझे अभिनंदन है कॉमर्स के अतिथियों तुझे अभिनंदन है। As per the CBSE, we are going online and offline training sessions. But for me, for us, for generous family, we all are today's master trainers. We all are masters in our own subject. So, we will interact with each other and learn your expertise and our expertise to facilitate the upcoming curriculum changes and facilitate how we can change the commerce department in the upcoming future. So it's not training, it's interaction. It's a get together of the commerce department of Dhanbad Sahodia. Am I right or wrong, sir? So we will interact with each other, we will share our views with you all, and we will expect your expertise, your excellence, and then we will sort out the upcoming problems, the present problems in the curriculum system of commerce. Now, as per the topic, we are undergoing the training, or we can say the interaction on the topic pedagogy of commerce. So what is pedagogy? We know pedagogy can be defined as the professional art of teaching. हम सभी बीएड में प्रोफेशनल जो नॉलेज हासिल किए हैं, वो हमारे प्रोफेशन को उजागर करती है, और एक प्रोफेशन में हम किस तरह से अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को स्टूडेंट को प्रेजेंट करते हैं, द टेक्निक्स, द
be shared with the students to make the entire subject matter meaningful is called pedagogy. It creates awareness of knowledge of the students. It engages the students in overall development. The students will be the final entrepreneur. They will be the CA. They will be CS. What is the mode of learning? What is the route that finally made the student successful? That all the subject matters comes in the topic pedagogy. Next slide. Next. कॉमर्स आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है और इसमें बहुत सारे ऐसे महानुभव हैं जिनको मेरा बार बार नमन और वंदन है। सो कॉमर्स का डेफिनेशन न देते हुए बस यही कहूंगा मैं, कॉमर्स मतलब दुनिया। ये पूरी जो दुनिया है वो कॉमर्स पे आधारित है। अभी अभी हमारे वन ऑफ मोस्ट सीनियर टीचर के चंद्रा सर यहाँ उपस्थित हुए। आई हर्ट कभी प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर के चंद्रा सर। कॉमर्स मतलब दुनिया, कॉमर्स है। आप देखिए जिस तरह पर्यावरण, सोसाइटी, हम लोगों के जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरह पूरी दुनिया को चलाने के लिए कॉमर्स जरूरी है। बिना कॉमर्स के हम कुछ भी नहीं सोच सकते। साइंस लेकर अगर हम डॉक्टर भी बनते हैं तो फाइनली घर को चलाने के लिए रुपया पैसा की जरूरत पड़ेगी, और वो कहां से आता है? वन एंड ओनली कॉमर्स। सो कॉमर्स मतलब दुनिया। एम आई राइट और आंसर? थैंक यू। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। मीनिंग ऑफ कॉमर्स, एज आई ऑलरेडी सेड, कॉमर्स मतलब दुनिया। और हम लोग लगातार अपने बच्चों को कॉमर्स का डेफिनेशन देते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द रूट लर्निंग। बट फॉर अ इंटरेक्शन पर्पस वी कैन से कॉमर्स मतलब दुनिया। दुनिया को चलाने की कला ही कॉमर्स है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडलेन थॉमस, ये बहुत बड़े मैनेजमेंट प्रोफेशनलिस्ट है और उन्होंने एक टर्म दिया है, embraces all those persons involved in the making, buying, selling and transport of goods। और ये हम सभी लगातार अपने बच्चों को सिखाते हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब कॉमर्स भारत में 23 सेंचुरीज पहले चंद्रगुप्त मौर्य के डायनेस्टी में अर्थशास्त्र का एक बुक रिकॉर्ड किया गया था, जिन्हें कौटिल्य जी ने रिकॉर्ड किया था। और उसमें एक चैप्टर है द बिजनेस ऑफ कीपिंग ऑफ अकाउंट इन द ऑफिस ऑफ अकाउंट। क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर राज करते हैं तो वहां देखें कि वहां की जो सिस्टम है उसमें बहुत सी खामियां थी, बहुत सारे घोटाले किए गए थे। वहां की जो अस्पताल बोल सकते हैं, हॉर्स डिपार्टमेंट, जितना भी उनके सिपाही थे, जितने भी टैक्स रेवेन्यू के डिपार्टमेंट थे, उसमें लगातार घोटाला चल रहा था। किसी का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था। और जब आचार्य विष्णुगुप्त ने वहां इंटरफेयर किया, जब मगध से धनानंद को हटाया गया, तब उन्होंने कंप्लीट रिकॉर्ड मंगवाया और देखा कि वहां लगातार घोटाले हुए। और उस घोटाले को ठीक करने के लिए उन्होंने एक सेट ऑफ बुक लिखा था, द बिजनेस ऑफ कीपिंग ऑफ अकाउंट इन द ऑफिस ऑफ अकाउंट। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Some interesting facts about commerce. Let's see in this small video. ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार कॉमर्स के जो फादर है वो पोसाइडन है। अकाउंटेंसी के बारे में हम सभी जानते हैं, फादर ऑफ अकाउंटेंसी। फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर। मदर ऑफ अकाउंटिंग सुली। फर्स्ट मिस्टर ई
कॉमर्स जेफ बेजोस, इन्होंने पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार किया था। फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जेरोम ली निकोलसन, फर्स्ट टू स्टार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट इन इंडिया के वैद्येश्वर, इन्होंने फेबमार्ट नाम का ई कॉमर्स कंपनी इंडिया में शुरू किया था। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स ऑफ कॉमर्स। नाउ स्कोप ऑफ कॉमर्स, हम माने नहीं या ना माने, लेकिन प्रेजेंट जनरेशन में 10th के बाद, सॉरी 12th के बाद बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे सेट नहीं कर पाते हैं, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले। साइंस के लिए ज्यादातर पेरेंट्स उनको इंसिस्ट करते हैं, आर्ट्स सभी बहुत रेयर होते हैं जो आर्ट्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कॉमर्स में क्या स्कोप है, कॉमर्स लेने से क्या होगा। उनके मन में एक जहर सा भर दिया जाता है, कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं। लेकिन कॉमर्स का स्कोप बहुत बड़ा है। इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे। मेरे सारे ट्रांजेक्शंस को मैनेज करने के लिए
department. Thanks to all of you nowadays. And we are going to learn something and exchange our ideas, views to one another, so which education can be enhanced for the students who are going to learn new things. Thank you. Thank you, sir. Myself, Suriman Das, PhD Commerce from Saraswati Vidya Mandir, Pune. Thank you. Please. Myself, Jay Datta, Kids Jharkhand Secondary School area. Yes, we are very proud that we are commerce faculty assembled here. And as the sir has told, that today, especially in Dhanbad or Jharkhand also, in this region, commerce is neglected. It is very big matter for us. The parents are thinking that there is only one scope, that is science, and they are just want to send their student work for engineering and the doctors. No one wants to say their work for commerce students. So whatever the commerce faculty get, the material, we can say that not a perfect good work, because the students value the books, marks, and intellectual, the genius student, all are goes to the science. So we get commerce faculty gets the what kind of student in lower value, and we have to prepare this student. So it is very good thing that commerce is here, and we think of the how the commerce, especially in this group, should be improved. So all the students come forward and take the commerce. Thank you. Thank you so much, sir. Sir has already discussed a big matter. For that solution, we have gathered to exchange your ideas. Thank you so much, sir. Please give a round of applause again for P.S. Datta, sir. Good morning, everybody. Myself, Mohammed Manhar, from Guru Gobind Public School, and I'm very much thankful to Samuday School Complex as well as this JLS School for conducting this online training on our service, which is very much connected as both the teachers have already told. Thank you. Thank you, sir. Good morning, everyone. My name is Ehsan Alam from Balika Vidya Mandir. I am very proud of me to be a commerce teacher. Thank you. Thank you, sir. Good morning, everybody. Myself is the sister. Myself, Shelia. One of the teachers we have gathered here, especially we have said that we have gathered here for the exchange of this is a golden opportunity for us, for all the teachers. So teachers are very much known and so many teachers are very new. So the exchange of knowledge is most important for us. So we are doing that things. So thanks to some of the complex that giving the opportunity for us to exchange our knowledge. So thank you, everybody. Thank you so much, sir. Good morning, everybody. Myself is Sanjeev Kumar KC, PGD Commerce from ICA. Thank you so much, sir. Respected principal ma'am, teachers, good morning to all. Myself Vikas Kumar from Symbiosis Public School. Thank you. Thank you, sir. At least this is welcome them with a great round of applause. Each and every, please. Good morning, all of you. Myself, from Swami Vivekananda. Thank you. Thank you, sir. Morning to all of you. I am Yoga Subhaji from Asim. I am really honored to join this. Thank you. Thank you so much, sir. Good morning, everyone. Thank you, sir. Good morning, everyone. Myself, Rajendra Prasad from Dasaragat. Beauty Commerce. Thank you, sir. I am Kumar Lawal, commerce teacher from SAP Data Science. Thank you.
morning everybody. I am Askin Ali, the Vice Chancellor of Public Schools. Good morning everyone. Myself Morushi Banerjee and I am from Imperial School of Learning. Thank you. Good morning everyone. My name is Prashant Roy and I am from Bhagat Singh Saraswati Vidya Mandir Chikunda. And I am honorably thankful to you that you people welcomed us the field of commerce to enhance our knowledge, and in turn I am sure that I will enhance my students' knowledge as well. Thank you. Good morning everyone. Myself Rohit Kumar Sinha and from Dwarka Government Foundation. और इस सेशन के माध्यम से हम तो सीख सकते हैं, हम अपने बच्चों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और कॉमर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लाइफ में। It is a commerce that helps in generates the income and wealth for the nation. Thank you. Thank you, sir. Please give a big round of applause. Myself, Rich Maharaj, PGT Commerce Saraswati Vidya Mandir. Thank you. Thank you, sir. Good morning everyone. Myself Rekha Pandey from JNS International School, Sardar. I am very thankful to this institute for giving us to learn the pedagogy of commerce. Thank you. Good morning to all. I am Solana Chatterjee from Sunrise Public School. Good morning to all. I am Rima Kumari from Bhagat Vidya Mandir. Thank you. Thank you, ma'am. Please. Good morning everyone. I am Chandu Kumar Bose from Sri Sri Suri Sri Dhanbad. Really, I am very thankful to Sardar School has organized such a brilliant training program. The same time, I am very thankful to Jalalia School. We are gathered here today for the purpose of exchanging our views and ideas. The skill which is very much required to teach the students of commerce. One thing I am recalling, just I have heard from on the stage, she was discussing about the scope of the commerce. Really, पहले सच में हम जमाने में देखे क्या जो बच्चा मार्क्स कम लेता था उनको पहले आर्ट्स दिया जाता था और फिर भी थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लेता था कॉमर्स में ठीक है चलो कॉमर्स ले लो उनसे आप कुछ हो नहीं पाया तो ऐसा कंसेप्ट था जैसा वो बता रहे थे डिस्कस कर रहे थे नाउ कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स कैन बी ए फाइनेंशियल एनालिस्ट एट द सेम टाइम चार्टर्ड अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग and we felt that there was very great scope for the commerce and recently तो about the professional course भी आ रहा है उसके द्वारा हम लोग बढ़िया बच्चों को सिखा सकते हैं तो ये great training program and we will be working on that. Thank you so much, sir, for your kind words. Please give a big round of applause, sir. Good morning. I am Uttam Kumar from Sri Surya Saraswati Gurukula. Thank you, JNRS and Serbia, for conducting this type of training program. Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, honorable presenter. Myself, Amit Vishal. I am PGT Commerce from Aparna Public School. Thank you, Sanjaya School Group and also JNMS School for having this kind of session. Definitely, we will learn today new things and also we will implement something new to our classes. Thank you. Good morning everyone. My name is Roshan Gupta from Aparna Public School, PGT Commerce. Thank you. Myself is K. Chandra, Saraswati Vidya Mandir. Thank you the Southern Oaklands to arrange this type of program and I hope it will be fruitful in the future. Thank you. Thank you so much, sir. Please give a big round of applause. Good morning everyone. Myself was Master from TTC International School and I am thankful to Sahodia as well as JNS School to organize such an interactive session for all of us because it will help us to
futuristic concept and will enhance the confidence as well as the entrepreneurship quality among the students. So thank you so much. Thank you so much for your ideas, sir. A very good morning. I am not here. Myself, Tawar Kumar Mandal from Dharma Public School here. Science told now, commerce is the world. It is absolutely correct. We can't survive without commerce. So, commerce is such a stream. In every way, we see the commerce. A very good example, whatever we are looking here in this room, all are related, directly or indirectly to the commerce. All are related. So, किसी ने ठीक ही कहा है, कपड़े मैली हो जाए, लेकिन बैंक अकाउंट मैली नहीं होना चाहिए. This is the commerce. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your ideas. So let's move on to continue the session. And I once again want to clap for applause. Please give a big round of applause. कहा गया है वो सूरज की गैस में लाली ना, वो बगिया की गैस में वाली ना, वो ससुराल की गैस में साली ना, और वो महफिल की गैस में नहीं ना हो. Please give a big round of applause once again, please. Now moving to the first session, commerce education. Commerce education डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे जुड़ा जो एक बच्चे को भविष्य का बिजनेसमैन बनाएगा. कॉमर्स एजुकेशन इज दैट फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट will directly and indirectly prepares the businessman for his job. अब हम लोग we all are leaders. चेंजिंग सिनेरियो लगातार बढ़ते जा रहा है और हम लोग डायनेमिक नेचर लगातार बढ़ाते रहते हैं कोर्सेज. तो हम लोगों को अब एक मार्ग ऐसा बनाना है. वो कैसे? जिस तरह माँ अनंत काल तक अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लिए या उसकी जरूरत को जानती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने बच्चों की जरूरतों को जानना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जब 5 साल का होता है और अपनी माँ को बोलता है आई लव यू मम्मा, रिप्लाई में माँ भी बोलती है आई लव यू बेटा. हमारे प्रोफेसर जब बच्चा 16 साल का होता है वो मम्मी को बोलता है आई लव यू मम्मा. मम्मी का रिप्लाई कितना चाहिए, वो कितने पैसे की जरूरत है, वो जानते हैं कि 16 साल का ऐसे पॉकेट मनी की जरूरत है. जब बच्चा 25 साल का होता है और मम्मी को बोलता है आई लव यू मम्मा, मम्मी का रिप्लाई कौन है, कहाँ की है, वो उससे लेकर चली जाऊंगी. जब 40 साल बाद वो बच्चा अपने मम्मी को बोलता है आई लव यू मम्मा, मम्मी का रिप्लाई बोला था ना शादी मत करना. वही बच्चा जब 60 साल का होता है और बोलता है आई लव यू मम्मा, तो मम्मी का से रिप्लाई कर दिया मैं किसी भी पेपर पर साइन नहीं करने वाली हूँ. अर्थात यहाँ टाइम कंडीशन चेंज हो गया. एवरेज ये एक जनरल फिनोमेना है. ज्यादा वायरस जब वो छोटा सा बच्चा है उसकी जरूरत को उसके प्यार को समझ रही, जैसे जैसे बड़ा होने गया मम्मी का जो प्यार का इजहार करने का तरीका था वो बदलता है. ठीक उसी तरह हम लोगों का जो सिचुएशन है वो बहुत ही डायनामिक हो चुका है. याद कीजिए 2020 से पहले जब कोरोना नहीं आई थी, हम सभी किसी भी बच्चे को मोबाइल के लिए अलाउ नहीं करते थे, मोबाइल के लिए इंसिस्ट नहीं करते थे. कोरोना आया और हमें उस नेचर के अनुसार बदल दिया. ऑनलाइन क्लासेस, जूम क्लासेस, गूगल मीट के थ्रू क्लासेस, और अब अभी हम लोग सभी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू टीचिंग्स को बढ़ावा दे रहे हैं. Am I right or wrong, sir? So, commerce education need to be prospered for continuous dynamic situation. इसीलिए कॉमर्स टीचर का जॉब और भी चैलेंजिंग हो गया. एक तो बच्चे पहले स्कोप से डरते थे,
इम्पोर्टेंस, उसके एप्लीकेशन पूरे दुनिया में कैसे चलता है उसको शो करने के लिए अभ्यास करें। दोस्तों, अगर आप कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो उसने कॉमर्स क्यों लिया है, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं उन्होंने कॉमर्स क्यों लिया। वैसे आपको कॉमर्स लेने के पीछे रीजन यही बताएंगे। देखो, हमें साइंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैथ्स डर लगता है और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में थ्योरी सीखना पड़ता है, इसलिए हम बीच का कॉमर्स ज्यादा मैथ्स नहीं सीखना होता और थ्योरी भी थोड़ा बहुत है। हमें तो कॉमर्स जाना और एक कॉमर्स लेने के पीछे थ्योरी बहुत ज्यादा चलती है। अगर 75% से ज्यादा मार्क्स आए तो साइंस और 60% से नीचे मार्क्स आए तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए। कई महापुरुष तो ऐसे भी होते हैं लॉटरी करवा देते हैं, जो बच्चा हाथ में आए वही स्ट्रीम में जाना है। स्ट्रीम चूज करने के लिए तिगड़म तो बहुत है, पर कॉमर्स से पढ़ाई करने का बेनिफिट बहुत कम लोग जानते हैं। तभी हम इस वीडियो में कॉमर्स चूज करने का ऐसे 5 बेनिफिट बताने वाले हैं जिसके बाद आप अपने करियर के कॉमर्स फील्ड के एक्सपर्ट ना पहला एडवांटेज यही है बहुत कम पैसों में आप कॉमर्स के कोर्सेज को कर सकते हैं। मतलब कॉमर्स सिस्टम के जो सबसे बड़े कोर्सेज हैं उनको भी आप बहुत ही कम पैसों में कवर कर सकते हैं। कॉमर्स सिस्टम के कोर्सेज में 3 लाख से ज्यादा किसी भी कोर्स में नहीं लगता, बशर्ते आपने भयंकर वाली कोचिंग ना ली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सीए कोर्स को करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी से पढ़ोगे तो 1 लाख की फीस नहीं है और कोचिंग भी लेते हैं तो भी 3 लाख से ज्यादा फीस नहीं होगी। वही साइंस सिस्टम के कोर्सेज से कंपेयर करें तो सिर्फ बीटेक के लिए मिनिमम 10 लाख लगता है और आईआईटी एनआईटी में 15 से 16 लाख तो लगते ही। मेडिकल की पढ़ाई करना है तो कई प्राइवेट कॉलेज में तो 1 करोड़ की फीस होती है। उसके मुकाबले कॉमर्स के कोई भी कोर्सेज को उठाना तो 3 लाख से ज्यादा नहीं लगते कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए। तो कॉमर्स सिस्टम से पढ़ाई इकोनॉमिकली वीक लोग भी कर सकते हैं और हमारे इंडिया में लोग के लिए कोर्सेज की फीस बहुत मैटर करती है, तो उस हिसाब से कॉमर्स एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, जॉब स्कोप। दोस्तों, वैसे जॉब स्कोप सभी स्टूडेंट्स के लिए समान नहीं होता, पर कॉमर्स सिस्टम से पढ़ाई करने का फायदा ये होता है आपको कंपनी में प्रमोशन लेने में आसानी होता है। कंपनी के ऊपर की पोस्ट में जाने का आपको ज्यादा मौका मिलता है और कई पोजीशन को रिजर्व रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कंपनी की माइका इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं, पर ये लोग कंपनी की एक्टिविटी के पार्ट नहीं होते। उसके लिए की मैनेजरियल पर्सन होते हैं। की मैनेजरियल पर्सन ऐसे लोग होते हैं जो शेयर होल्डर्स के बाद सबसे पावरफुल लोग होते हैं। की मैनेजरियल पर्सन कंपनी के डायरेक्टर आते हैं, सीईओ, सीएफओ, सीएस, होल्ड लाइन डायरेक्टर, इस तरह के लोग आते हैं। इनमें से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो कोई भी बन सकता है, पर सीएफओ जो होते हैं वो सभी कंपनी में सीएफए, सीएस, सीए, सीएफए इस तरह के क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए रिजर्व है। उसके बाद सीएस का पोजीशन भी जिसने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रखा है उनके लिए रिजर्व रहता है। उसके अलावा ज्यादातर डिपार्टमेंट के हेड कोई ना कोई फाइनेंस से रिलेटेड या फिर एमबीए किया हुआ पर्सन को ही अपॉइंट करेगा। तो कॉमर्स से पढ़ने का फायदा यही है अच्छी पोजीशन पे प्रमोशन पा सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज फाइनेंशियल नॉलेज का होता है। अगर हम ध्यान दें कॉमर्स स्ट्रीम की सब्जेक्ट को उसमें आपको अकाउंट्स, मार्केटिंग, टैक्सेशन, कॉस्ट इस तरह की सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ में जरूरत होने वाली चीजें हैं। जैसे आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, ये आप डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर सकते। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब भी रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा यूज नहीं होता, पर अकाउंट्स आपको सिखाता है कैसे आप अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है वो कैसे मैनेज करना है वो भी सिखाता है। टैक्सेशन का नॉलेज अगर आपको होगा तो आप सेविंग्स के नए नए तरीका ढूंढ सकते हो। उसके अलावा लोग स्टॉक मार्केट की कोर्स लेते हैं, पर कॉमर्स में आपको शेयर्स, स्टॉक, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इन पर डिटेल नॉलेज दिया जाता है, जिससे आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं आराम से सीख सकते हैं और खुद का रिसर्च खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट, सैलरी। कॉमर्स स्ट्रीम के जो कोर्सेज हैं उनको पढ़ने के बाद जो जॉब मिलती है उसमें करोड़ों के पैकेज तो देखने को नहीं मिलती, पर एवरेज एक अमाउंट जरूर से मिलती है। जैसे आपने सुना होगा बीटेक करने के बाद करोड़ों की पैकेज मिल जाती है और वही किसी इंजीनियर को जॉब ही नहीं मिलती। पर सीए में जो कॉमर्स की टॉप मोस्ट फेमस कोर्सेज हैं उनको करने के बाद करोड़ की तो नहीं पर एक डिसेंट 8 से 10 लाख की सैलरी पैकेज सबको ऑलमोस्ट मिल जाती है। पर ये जो करोड़ की सैलरी पैकेज मिलती है इसमें इन हैंड सैलरी 10 से 12 लाख की होती है। पर सीए, सीएस इन कोर्सेज को अगर आप कर लेते हैं तो इतना तो गारंटेड रहता है कोई अनएम्प्लॉयड तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट, इजी टू फाइंड
अपने आप में एक जॉब होती है। जैसे मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट होता है उससे आप सेल्स पर्सन बन सकते हैं। अकाउंट्स की पढ़ाई करके आप अकाउंटेंट तो बन सकते हैं, लॉ की पढ़ाई करके आप लॉ के फील्ड में जा सकते हैं। तो जॉब में थोड़ा इजी हो जाता है। हर छोटी से छोटी बिजनेस में अकाउंटेंट तो चाहिए होता है। इंजीनियर्स सारे कंपनी में जरूरत नहीं होती, डॉक्टर्स में सभी कंपनी में जरूरत नहीं होती, पर मेडिकल के फील्ड में भी अकाउंटेंट्स की जरूरत जरूर होती है। एक्सपीरियंस करवाने के लिए किसी न किसी कॉमर्स के बंदे के पास तो जाना नहीं सकता। ये तो मैंने छोटी सी एग्जाम्पल दिया। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की नॉलेज आपको उतना हेल्प नहीं करेगी, पर हाँ मैथ्स की नॉलेज काम आएगा। पर कॉमर्स में आपको मैथ्स का भी नॉलेज दिया जाता है, लैंग्वेजेस का भी नॉलेज आपको दिया जाता है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करता है। I think the video clearly defines the importance of commerce. If you like the video, please give a big round of applause, please. Importance में कुछ जोड़ना चाहूँगा। अगर एक साइंस का स्टूडेंट है और या साइंस का कोई बंदा है, उसको रोज दिखलाइए, वो सोचेगा रोज का साइंटिफिक नेम क्या है, रोज कहाँ से आया है। एक आर्ट का बच्चा उस रोज को अच्छे ढंग से बनाने का कोशिश करेगा, लेकिन एक कॉमर्स का बच्चा है और कॉमर्स का बंदा है तो वो रोज किसे तू यानी मार्केटिंग वो करने का सोचेगा और उससे दो पैसा कमाएगा। तो दैट इज कॉमर्स, द मार्केटिंग ऑफ ईच एंड एवरी कमोडिटी दैट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन पीपल इज कॉमर्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट वन। Correlation of commerce accountancy with reference to economics। आप सभी विशेषज्ञ यहाँ हैं, आपको इन चीजों को एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आपसे सीखूंगा। Move to next slide, please. Next one. Values of teaching commerce and accountancy। Commerce और accountancy strategy in accountancy हमारे गुरु, हमारे आदरणीय प्रशांत श्रीवास्तव सर वो अगले सेशन में अकाउंटेंसी रिलेटेड स्ट्रेटजी समझाएंगे। तो कॉमर्स प्रैक्टिकल वैल्यूज होता क्या है? प्रैक्टिकल वैल्यूज सोसाइटी का रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उन्हीं से एक बिजनेसमैन, एक कमर्शियल पर्सन को डेवलप करना, वो होता है प्रैक्टिकल वैल्यू। और हम सभी जितने भी यहाँ विशेषज्ञ उपस्थित हैं, हमारा दायित्व ही होता है कि क्लास में घुसने से पहले जैसे पहला कदम रखते हैं, हमें बच्चों में फ्यूचर अकाउंटेंट, फ्यूचर सीए, सीएस, सेल्स पर्सन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सीईओ सब नजर आने लगता है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू। सोशल वैल्यू वो वैल्यू होता है जिस कॉमर्स टीचिंग से बच्चे क्या गेन करते हैं और सोसाइटी में उसको कैसे यूज कर रहे हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं। सोसाइटी का रिसोर्स आज के डेट में एमएसएमई, स्टार्टअप पर भी सेशन है जो हमारे स्कूल की सबसे एनर्जेटिक बीएससी टीचर मिस्टर चेतन गोस्वामी ने भी। तो स्टार्टअप पर ज्यादा नहीं करता हूँ, स्टार्टअप का मॉडल भी आप देख सकते हैं हमारे रखा हुआ है। कल्चरल वैल्यू, जैसा कि हम लोगों ने पहले की स्लाइड में देखा, 23 सेंचुरी देखो, वहीं से हमारे कल्चर में अकाउंटेंसी, हमारे कल्चर में बिजनेस, ट्रेड, सिल्क रूट सभी सुने होंगे, टेट में पढ़े थे। सिल्क रूट मेनली इस्तेमाल किया जाता था इंडिया और चाइना में, जिसमें जेम्स ट्रेड किए जाते थे, सिल्क क्लॉथ ट्रेड किए जाते थे। तो ये ट्रेड हमारे कल्चर में ही है। वास्को दा गामा भी स्पाइसेस को खोज करते करते इंडिया को डिस्कवर किया था। तो ट्रेड इंडिया के कल्चर में ही पनपा हुआ है। मोरल वैल्यू, हर चीज का कोई ना कोई पहलू होता है। जैसे हम लोग कहानी पढ़ते हैं तो लास्ट में उसका एक डिस्कस निकलता है, उसी तरह कॉमर्स का कंप्लीट अध्ययन करने के बाद, कॉमर्स का कंप्लीट नॉलेज गेन करने के बाद वो जो आउटकम निकलता है, whether he is a CA, whether he is a CEO, whether he is board of director person, वही है आपका moral value, disciplinary value। कॉमर्स फाइनेंस रिलेटेड सारा डिसिप्लिन शो करता है जो एक कंपनी को बांधे रखता है प्रॉफिट गेन करने में।
गाइडलाइंस में जो 11-12 लेवल पर कॉमर्स टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, जो कि आपके स्लाइड में यू कैन टेक अ ग्लांस। पर टू डेवलप द स्टूडेंट्स एन इंटरेस्ट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन बिजनेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सेकंड, टू acquaint students with the theoretical foundation and practices of organizing, managing and handling routine operations of business firm. तीसरा, to inculcate attitude and values leading to the integration of business with the social system in a positive approach. चौथा, to enable the students to apply the principles and functions of management to specific aspects of business. Next slide. To equip the students with essential fundamental knowledge for setting up, organizing and handling routine operations of a small scale factory. Next, to equip the students with basic information on modern methods of office operation for effectively carrying out paperwork in a business office. Next one, to impart knowledge of methods considered useful in maintaining records of proprietary and partnership firm companies and non-trading organizations. Next one, to generate and promote awareness of the student in modern techniques of maintaining accounting records with the help of computer. Next one, to enable the students to analyze financial statement and interpret the result for decision making. Next, so these are the objectives of CBSE class 11-12 level for teaching commerce. ये CBSE के गाइडलाइंस में ऑलरेडी आप उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं, वहां स्टेटेड है। Now, recent development in commerce, बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा चेंजेस आए और इंडिया में प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर लगभग हर जगह पनप रहे हैं, नए प्राइवेट सेक्टर। जैसे पहले आप हमसे बहुत सीनियर हैं, आपको बहुत चीज आप लोगों से सीखने को मिलेगा। अभी बैंकिंग सिस्टम में पहले पेपर वर्क हुआ करता था। आप में सर बहुत कुछ कोई ऐसे होंगे जो पैसा जमा करने गए होंगे तो मैनुअल एंट्री हुआ करता था। धीरे धीरे वो कंप्यूटराइज सिस्टम में आया, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम आया। हम सोच भी नहीं सकते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता है। मुझे अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है 1 मिनट में पैसा ट्रांसफर हो जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मींस से। आपको अगर किसी और को ट्रांसफर करना है तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। दीज आर द डेवलपमेंट, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, कोर बैंकिंग, टेली बैंकिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल इंडिया भी चल रहा है और हम सभी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल लगभग हर जगह करते हैं। वी आर डूइंग सो, यस और नो? नेक्स्ट, इन मार्केटिंग ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जहां पर आप कोई भी प्रोडक्ट इजीली सेल कर पाते हैं। कल मैंने Amazon सर्च कर रहा था, वहां पर गोबर के उपले भी बिक रहे थे। आप टाइप करेंगे तो 90 रुपीस का एक गोबर का उपला वो बिक रहा है। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो ई कॉमर्स के जरिए हम कुछ भी जो हम अपने को कन्विंस कर सकते हैं वो बेच सकते हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस सेक्टर। आप अगर टेलीविजन देख रहे हैं तो मिनट दर मिनट आपको कहीं ना कहीं से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा बहुत सारे बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस, तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, एक्सटेंडेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इनका जरूरत सबसे ज्यादा हम लोगों को पड़ गया। ऑनलाइन टीचिंग, टेली कम्युनिकेशन से टीचिंग। आज के डेट में अब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसी भी बच्चों को ऑनलाइन मोड से आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स। ई कॉमर्स एंड ट्रेड दे आर कॉमर्स। मूव टू द नेक्स्ट। प्लानिंग का जब मैं खुद स्टूडेंट था तभी से डेफिनेशन पढ़ता है, डिसाइडिंग एडवांस व्हाट इज टू बी डन इज कॉल्ड प्लानिंग, और हम लोग लगभग सब यही सिखाते हैं। लेकिन एक टीचर के लिए प्लानिंग का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। टीचर के लिए प्लानिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नेक्स्ट हाँ, प्लानिंग is an important step in effective teaching. The plan determines what will be learned by the student. Whatever student learn or encounter in the classroom activities are
ताकि प्री बोर्ड से पहले 12th के बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो सके, और हम उसी में टेस्टिंग पीरियड भी रखते हैं ताकि टाइम टू टाइम we can acquire the knowledge whether our students are going on right track or not. उसके बाद आ जाता है यूनिट प्लान। जब हम पूरे ईयर का वर्क को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद यूनिट प्लान बनाते हैं। यूनिट वाइज हमें कितने पीरियड्स लगेंगे, यूनिट वाइज क्या क्या समझाना है, रिसेंट चेंजेस क्या आए हैं, सीबीएसई, वी ऑल आर सीबीएसई रिलेटेड टीचर्स, सीबीएसई की टॉपिक्स को ऐड किए हैं, सीबीएसई ने किन टॉपिक्स को डिलीट किया है, ये यूनिट का प्लान हम लोग तैयार करते हैं। एंड द लास्ट वन इज लेसन प्लान। लेसन प्लान इज द weapon of each and every teacher to acquire the powerful knowledge for the student, to satisfy the student। जैसे एक क्लासरूम में कदम रखते हैं, हमारा पहला ही माइंड स्ट्राइक करता है कल का क्या टॉपिक था, उसी को आगे लेकर जाना और किस ढंग से लेना है। एक ही चीज को मैं डेली करके हम लोग बिल्कुल ठीक करते हैं। न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज का कैसे इस्तेमाल करें, वो सब लेसन प्लान में आता है। नेक्स्ट, एक्चुअली पेडागॉजी नॉर्मल्स आप सभी जानते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा। उसमें से मैं कोशिश किया हूं कि कुछ टॉपिक्स को यहां डिस्प्ले किया जा सके। देयर आर सो मेनी रिसोर्स पर्सन एंड आई हैव टू ओनली यूज 1.5 hour आई थिंक सो पेडागॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स इसमें नहीं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। अगर आप किसी भी चीज को सिंपलेस्ट से सिंपल वे में अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब आप खुद उस चीज को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चे किसी भी चीज को एकदम सिंपल फॉर्म में चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर चेक बाउंस का प्रोसेस हम समझाते हैं, चेक बाउंस हो, उसके पूरा अगर थ्योरी टिकल एस्पेक्ट को उसके सामने अगर हम बोल देते हैं, फिर भी वो थोड़ा हिचकिचाता है समझने। लेकिन बोले तो एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, बड़े का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। हमारे प्रसाद सर एक क्लास में पढ़ा रहे थे, मैं वहां से गुजर रहा था एज ए एकेडमी कोऑर्डिनेटर, बीच-बीच में रन पर जाना पड़ता है, तो प्रसाद सर बड़ा अच्छे ढंग से पढ़ा रहे थे। वो तो अपने ही होते हैं जो गम देते हैं। गैरों ने कहा गम होता है, चेक तभी बाउंस करता है जब अकाउंट में पैसा कम होता है। इतने अच्छे से लोग एक्सप्लेन किया और बच्चे को समझ में आ गया अकाउंट में पैसा नहीं है, चेक बाउंस। तो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रसाद सर। संजीव सर, हमें कोई ओके। नाउ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का नीड क्या है, हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं। साफ साफ यहाँ स्टेटमेंट में देख सकते हैं, करिकुलर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी एंड रिसोर्स गिविंग द प्लानिंग प्रोसेस टू अटेन द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट। आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, देखिएगा बच्चे रेडी रहते हैं, हाथ खड़ा करके उस टॉपिक से सब 10 सवाल रेडी रहते हैं। बहुत जैसे है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे मेरा जान पहचान है, समय समय पर सर वो लोग बीच बीच में हाथ उठाते रहते हैं और सर इसका क्या होगा एक्सप्लेन नहीं, मोहन जैसा ऐसे होता है, हमें सर सही बताया, हम हो सकता है कि थोड़ा कम जानते हो। प्लीज गिव वन सेकंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर मोहन जैसा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट वन स्टेप्स इन लेसन प्लान। आप इतने महारथी लोग हैं, आपके समय में समक्ष में कुछ नहीं, और लेसन प्लान का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या स्टेप्स होता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिर भी इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद इसका प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं वो, उसके बाद जनरलाइजेशन मतलब हो गया प्रेजेंट करने के बाद बच्चों ने क्या अचीव किया उसको जनरल लैंग्वेज में हम लिखें। उसके बाद एप्लीकेशन, जो भी नॉलेज हमने बच्चों को दिया वो कहां अप्लाई कर सकते हैं उसका डिटेल्स। उसके बाद रिकैपिचुलेशन, ब्लैक बोर्ड समरी, ब्लैक बोर्ड इज मस्ट फॉर अस। लाख टेक्नोलॉजी आप यूज कर लें, लेकिन जब तक हाथ ब्लैक बोर्ड पर नहीं चलता है नहीं लगता कि हमने पढ़ाया। Am I right or wrong, sir? Yes. Next, homework assignment. Most important topic. हम लोग होमवर्क असाइनमेंट देते रहते हैं और बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन किया, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5वां उसको आता
क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शेयर्स पढ़ा रहे हैं तो शेयर्स का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, जैसा कि एक शेयर का छोटा सा मॉडल यहाँ रखा हुआ है, उसको अगले सेशन में हमको साथ यूज करके एक्सप्लेन करेंगे टीचिंग स्ट्रेटजीज, और वो सारा ऑब्जेक्टिव्स इसमें देखिए अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, हमने यू ऑल आर पीजीटी, यू ऑल आर पीजीटी, हमें जो सीखना था लगभग सीख लिया है। अब सिर्फ हम लोग क्या बोल सकते हैं, धीरे धीरे ट्रेनिंग के जरिए कुछ चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन बच्चों में उन्होंने क्या अक्वायर किया, सब्जेक्ट को कितने नॉलेज पूरी तरीके से अक्वायर किया, वो अच्छे से दिखाना एक प्रॉपर लेसन प्लान का काम है। नेक्स्ट, जनरल नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। फॉर अगर कॉमर्स का बच्चा तो उसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, कमर्शियल आर्ट, फाइन आर्ट्स, इस सभी का एक रफ स्केच जरूर मालूम होना चाहिए। उसे सब्जेक्ट्स का एक्वेंट नॉलेज होना चाहिए कि मेरे स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और उनका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स टीचर। क्लासरूम बहुत डाइवर्स सिचुएशन होता है, हर एक बच्चे अलग अलग तरीके से आते हैं, और क्लासरूम एक ऐसा जगह है, आजकल तो मंदिर में भी वीआईपी लाइन और नॉर्मल लाइन लगता है, लेकिन एक क्लासरूम ही एक ऐसा जगह है जहां पर हर स्टेटस को छोड़कर एक ही स्टेटस होता है, एक टीचर का और एक स्टूडेंट। तो उस नेचर को हम लोगों को वहां पर डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, क्लैरिटी अबाउट प्रीवियस नॉलेज। ये तो हम लोगों के रग रग में है, जैसे क्लास में पूछते हैं यस्टरडे वी हैव लर्नड दिस, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। जो प्रियर नॉलेज हमने दिया है उसको पहले से रिकैपिचुलेट करवाना जरूरी है, ताकि उसको आइडिया आ जाए कि कल हम लोगों ने ये पढ़ा था और उसी से रिलेटेड अभी का टॉपिक है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द क्लास लेवल, डिवीजन ऑफ यूनिट्स, यूज ऑफ मटेरियल एड्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मटेरियल एड्स आज के डेट में सीबीएसई ने लगातार गाइडलाइंस इशू किया है, टीचिंग बाय लर्निंग, और ये प्रोसेस को कंप्लीट करता है लर्निंग बाय डूइंग। और आगे के स्लाइड्स में एडगर मॉडल है, एडगर कोन मॉडल, उसमें मैं इस टॉपिक को थोड़ा क्लैरिफाई करने का कोशिश करूंगा। एडगर मॉडल में क्लियरली डिफाइन किया है, लॉर्ड एडगर ने 1967 में एक मॉडल दिया था, उसका कंप्लीट यहाँ स्ट्रक्चर तैयार है, वो अगले स्लाइड में है। Today's session is of 5 hours. We will exchange our ideas. भी बहुत सारा पट खुलना बाकी है, जहां आप लोगों का बहुत यहाँ जरूरत है, आप लोगों का जरूरत है, आप लोगों की नॉलेज का जरूरत है। Am I right, sir? Yes. बाकी स्ट्रीम में देखें तो अगर दो लोग मिलते हैं तो या तो गेट टुगेदर के लिए मिले होंगे या फ्रेंडशिप के लिए मिले होंगे, लेकिन कॉमर्स में अगर दो लोग मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? एनीवन? दो लोग, जहां दो लोग का जिक्र हुआ है ट्रांजैक्शन आ जाता है, वहां पर फ्रेंडशिप एक ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो हम लोगों का सोच सिर्फ अपना सपना मनी नहीं। चलिए नेक्स्ट। हाँ, टीचिंग मटेरियल्स, जैसा कि अभी इससे पहले मैंने डिस्कस किया, टीचिंग मटेरियल्स पर एक ट्रेनिंग सेशन यहाँ हुआ था, बहुत ही अच्छा हुआ था, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो उससे इंस्पायर होकर मैंने पेडागोजी में खोजा, तो वहां पर भी ये इसका जिक्र था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बाद। टीचिंग मटेरियल्स आर द एड्स यूज्ड बाय द फैसिलिटेटर टू हेल्प हिम और इन फैसिलिटेटिंग हिज लेसन इफेक्टिवली। हम कैसे अपने सब्जेक्ट
कभी जो सुई कर देती है वो तलवार नहीं कर पाती है, और जो तलवार करती है वहां पर सुई का इस्तेमाल नहीं हो सकता। बस वही चीज है, छोटे छोटे मॉडल्स का इस्तेमाल करके हम कभी कभी बहुत चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं, और बहुत बड़ा बड़ा पीपीटी से भी वो चीज नहीं हो पाती है। तो छोटा हो या बड़ा हो, एक टीचर को वो हेल्प कर रहा है, एक स्टूडेंट को समझने में हेल्प कर रहा है, वही है टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट स्लाइड। Types of teaching and learning materials. TLMs can be broadly classified into this category. The foremost first textbook. बिना textbook के दुनिया ही शून्य है, zero. Am I right or wrong, sir? Ma'am, am I right? Yes. Next, maps, charts, models. Few specimen is here, models. Overhead projector, PowerPoint slides. Now I am using PowerPoint slide. Next, audio materials, audio visual medium. आज के डेट में हम किसी भी चीज को effectively PPT प्रेजेंटेशन से या फिर ऑडियो विजुअल मटेरियल से आसानी से बच्चे को समझा सकते हैं। नेक्स्ट, एडगर, देयर ओन ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें देखिए डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये कंक्रीट लेवल टू एब्स्ट्रैक्ट लेवल जा रहा है। डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, देन कंट्रीब्यूटिव एक्सपीरियंस, ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस, डेमोंस्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप्स, एक्जिबिट्स, मोशन पिक्चर, ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियोस, पिक्चर विजुअल सिंबल्स। ये सारा एडगर मॉडल है जिसमें दिखाता है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव स्किल और मोटर स्किल जो कि हमारे पेडागोजी में समझाया गया है उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन। अब हेलो, this one, हेलो, 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 अब ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इस एक्टिविटी में सर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। जिन्हें आंसर डिकोड कर लेंगे वो प्लीज अपने हाथ को खड़ा करें, रेज योर हैंड। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन प्लीज। आपको एक पहला, ये दूसरा और तीसरा, तीनों को जोड़कर कॉमर्स का ही कोई टर्म होगा। कॉमर्स, वी आर कमर्शियल्स, सो प्राउडली देयर इज अ कॉमर्स टर्म देयर। तो इन तीनों को जोड़कर एक कॉमर्स टर्म होगा, वो आपको बतलाना है। दिस एंड दैट। रेज योर हैंड प्लीज। यस, गिव द माइक टू हिम। Yes. Partnership. Partnership. Please give a big round of applause. There is small gift for you, sir. Please give a big round of applause. Next one. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anyone? Yes, there. Very good, sir. Yes. Doctor, you are and document. It's the correct answer. Please give a big round of applause. Small gift for you, sir. Next one, please. 1 and 2. Please. अकाउंटेंसी का टर्म है सर। यस प्लीज। यस सर, इट्स लेजर। लीड एंड jar, ledger. Please give a big round of applause for sir.
Your kind name, sir, please. Next one, please. 1, 2, and 3. Again, the term of accountancy. Anyone, please? Anyone? Give me some hints. I think it's there. I think it's whole. First one connected. Yes! Share holder. Please give a big round of applause for 1 second because of this. One more chocolate for sir. Next one. Again, Modi ji can hear. Yes. 1, 2, and 3. One, two, and 3. Anyone? Yes, sir. 1 second. Yes, it is commodity. It is coming from Modi tea. Modi and tea always connected with each other. Please give a big round of applause for sir. 1 second. Take the toffee. This chocolate with you. Next one. 1 and 2. Yes, sir. K. Chandra, sir. Yes, it's celery. S-A-L-R-E. Celery. Please give a big round of applause for K. Chandra, sir. Please. Next one. 1, 2, and 3. No, it's not local rate. Anyone other? Yes. Yes, it's security. Security. So please give a big round of applause for ma'am. Please give a kind name, ma'am. Please. Sukanya Chatterjee. Please give a big round of applause for Sukanya Chatterjee. Next one, please. Oh, it's team. 1, 2. Anyone, please? Banker. It's not banker. Ye Datta, sir. You are too close. I think you are too close. Yes. Banking. Yes. That's answer. It's banking. Banking. Yes. Chocolate दोनों जगह डालना चाहिए. उनको भी वही बोलते हैं. Banking. आप आग में चले गए sir. It's banking. No, it's king. Looking like Joker, but he is a king size king. Please give a big round of applause for as answer, please. Please. 9th one. Find one. 1, 2, 3, 4. Distribution. Ladies first. Yes, it's distribution. Distribution. Please give a big round of applause for your kind name, please. Yes, please. What is the management? Please, जोरदार तालियां, please. Next one. Anyone? Budget? No, it's not budget. Yes, there are so many. Anyone?
Please, be quick. I can just give us small hint. It is stock. Stock statement. No. Stock exchange, no. There is no exchange. Anyone more? I think there is tick mark. Tick mark. Yes, who is saying? Stock market. Yes, it's the correct answer. Stock market. Get cutty. Stock market. Please give a big round of applause for your kind answer. Pankaj Kumar. Please give a big round of applause for Pankaj Kumar. The last one. It's sharing. Yes, Kesari sir, sharing. Please give a big round of applause for Kesari sir. Please. Please give a big round of applause. So I think you enjoyed this game. So let's have a big round of applause for this game. Please. तो सर हम लोग ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे बच्चे को. Thank you. Moving to next slide. Wait. Professional development. हम सभी यहाँ प्रोफेशनल इकट्ठे हुए हैं. बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज पूरे धनबाद के जितने भी कॉमर्स के दिग्गज हैं यहाँ उपस्थित हैं. आई रियली अप्रिशिएट एंड बार बार आप लोगों का इस जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के इस प्रांगण में स्वागत है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है? देयर इज अ वीडियो ना. वेट. जिस तरह हम लोग नाइफ खरीदते हैं, नया जल्दी सब्जियों को फलों को काट देता है, लेकिन एक समय के बाद नाइफ होने के बावजूद उसकी धार थोड़ी कम हो जाती है और वो फिर चीजों को धीरे धीरे काटने लगता है. अगर उस नाइफ को थोड़ा सा कहीं जाकर धारदार करवा दिया जाए, उसके बाद आप देखिएगा कि नया नाइफ से भी ज्यादा तेजी से वो फिर धारदार नाइफ काम करने लगता है. ठीक उसी प्रकार हम प्रोफेशनल्स हैं. हम लोगों ने एक फिक्स प्लेटफॉर्म का टीचिंग एडहर किया है, रिसीव किया है, चाहे वो प्रोफेशनल बीएड में हो, चाहे ड्यूरिंग लर्निंग पीरियड. एक समय के बाद हम लोग स्टैग्नेंट हो जाते हैं और उसी समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है ट्रेनिंग्स की. सीबीएसई ने ट्रेनिंग्स क्यों रखा है? Whether we are related? No, we are the professionals. लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग इसलिए रखा कि उन्होंने अभी इंप्लीमेंट करने जा रहा है एनईपी 2020. उसमें तरह तरह के चेंजेस लाए गए हैं, तो सारे टीचर्स वो जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट कर सकें, इसीलिए हम लोगों को ट्रेन किया जा रहा है. एक छोटे से वीडियो इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर है सर, आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. It was the PPT itself, I think. After winning several archery contests, a young and a rather boastful champion challenged a Zen master, who was also renowned for his archery skills. The young man demonstrated remarkable technical proficiency as he hit a distant bullseye on his first try, and then split the same arrow with a second shot.
drop his bow, but rather motioned for the young archer to follow him up the mountain. Curious about the old fellow's intentions, the champion followed him high into the mountain, until they reached a deep chasm, bridged by a rather flimsy and shaky wall. Calmly stepping onto the middle of the unsteady and dangerous bridge, the old man picked a spot on a distant tree as his target. He drew his bow and fired a clean, direct hit. "Now, it is your turn," he said as he gracefully stepped back onto the safe ground. Staring with terror into the seemingly bottomless abyss, the young man just could not bring himself to step on to the shaky wall. Seeing his challenger's fearful face, the Zen master said, "You have much skill with your bow, but very little skill with your mind." The young champion's ego was washed, and he understood that the mind is truly the most powerful weapon in life. There is a skill greater than all skill, which is the mastery over our own mind. No matter how proud we are of our talents, if the mind is shaken, it can lead us to failure. An eloquent speaker with friends may not be able to say a word in front of 1,000 people. Why? Because the mind makes him fearful. Then why do we boast about perfect skills when we lack perfection in our very own mind? Hone your skills if you like, but above all, own your mind and master your life. Thanks for watching and stay simply wise. Thank you. First of all, I welcome our special resource person of today's training session, one and only Mr. Mohan Chatterjee. Sir, please give a big round of applause for Sir, Principal of DAV Model CFR. It's an honor, sir, that you have joined us. We will honor sir, and after that, sir. I think you have tolerated me much more. So that's the end of my training session. After this, today's special guest as well as resource person, Mohammed sir will join the stage. So first of all, I would like to request our academic teacher and honorable principal ma'am to escort our respected sir onto the dais. Please, ma'am. Please. I request our honorable principal ma'am to present the bouquet and honors. Thank you, sir. Now I request sir to continue. Please. Good afternoon.
proud and it's an honor for me to address this August gathering. And you all of my colleagues, and it's very nice to see you all here again in this chilled morning. Bachchan sir, Ken Dutt sir, Aishan Ahmed, Shimohan Jha, all are very good. Chandra sir, so very known face. You all are well experienced, and because of the NEP and the CBSE guideline, as we have to complete 50 hours training every year. So we are in that process, 25 hours from CBSE and 25 hours in-house. So I am very much thankful to Shaudaya. Ma'am is also one of the core committee members for organizing this type of seminar. And this is the platform where we can share our views, we can share our concerns, and how we can develop the main interest in the commerce stream. Actually, students are very much reluctant that they are not interested to go for the commerce stream. They choose science. Why they are not interested to choose commerce? We are not getting quality students. This is the complaint from all the teachers always to the principal. Sir, madam, we don't have quality teachers, so how we will be able to do quality result? So it is our mistake, it is our fault. We have to create interest among the student to get quality students. Do we ever visit standard 8, 9, 10? Do we ever convince them what is the importance of commerce? No, we never do. We have to convince them what are the scopes we have in future in commerce. You take arrangement period from principal ma'am. Ma'am, please arrange one period for me in standard 8, 9 or 10 so that I can communicate them that what we will do after plus 2. What are the scopes you will have. This we have to do. We have to show the result. Simply saying that we don't have quality students. Right now we have students. The time is coming that we will not have any student in your class. Then where will you go? Now we are talking about the quality. Day by day, all the industries are going to close down. I have seen Dimadi Kuliani, Jamatwa Kuliani, 6 Friends Kuliani, shut down. Manpower lessons everywhere in CFRI. So, day by day, in this locality, population is reducing. People are transfer shifting from Jharia to somewhere else. We cannot shift our school from here to there, isn't it? So, whatever quality whatever students, whatever input we have to nurture in such a way so that people should come from township and they will say, if I want to take admission in commerce, I must take admission in JNMS Tingwadi Dharwad. Because there the commerce is so this please I तो हमें ऐसे ही कुछ करना है and I am very fortunate, Runa madam, that I am here again. I started my teaching career from this school in the year 1994. 94, 95 I was here, and then in 1996 I joined DAV CFRI, and by the grace of God right now I am head of that school. So nothing to talk about your commerce, accountancy and business studies. You all have very vast experience. You all have worked with me during evaluation process, and even sometimes I came to know something new techniques from you all. So there is nothing special that I can give you only. That sir is from, I know him but I am not recalling his name. Yes. Sanjeev Pestri. You are from ISL, na? Yes. So very known face are sir. So what is the topic of today's, I don't know. But simply I would like to tell you that our main concern is to have a very good result in commerce. This is not. We are about to complete the syllabus. Session is over. We are approaching towards pre-board.
And you know, the students, those who are going to appear this time, they are going to taste the board exam first time. Because they were promoted in standard 10th without appearing board exam. So they are going to face board exam first. So this is a very big concern for all of us. So if we go in the same pattern as far as the earlier pattern was we used to follow, we need to change a little bit. We have to pick one by one. We have to see where the loopholes are there. कमजोर कड़ी आपका कौन है, आपको फाइंड आउट करना है. Oh, yeah. Subiman is also there. The face has already changed. Huh? So we will discuss here that what sort of plan we will have for the forthcoming board exam. I have some plan. I have also discussing with my commerce teacher that how to improve the result, how to enhance the percentage. Madam, in midterm I calculated class average, so it was very practical. It was around 30 to 40 in all subjects, whether it is mathematics, English, accountancy, BST, economics.